یہ جو موجودہ زمانہ ہے یہ نقلی پیروں کا ہے، ایسا میں کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے نقلی پیر آپ کو جگہ جگہ ہر درگاہ کی طرف اور ہر محلے کی طرف جہاں سنیت زیادہ چلتی ہے وہاں آپ کو نظر آئیں گے، اور جو اس بات کی طرف مائل ہیں کہ پیری مریدی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے رسول اللہ نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ کسی صحابی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، ایسے اس طرح سے ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے اسے بدنام کس طرح سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے، اس کا جو ہے محنت کرنے والوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو گئی کہ نقلی پیر والوں نے جو ہے خود موقع دیا کہ اس صوفیزم کا جو معیار تھا پرانے زمانے میں، جو اولیاء اکرام جو مغل کے زمانے میں تھے ہندوستان میں، ان کا ایک الگ ہی سسٹم تھا کہ دین کو کس طرح سے جو ہے ایسے تراشا جائے جس طرح سے جو ہے اسلام کو پھیلنے کے لیے کافی مدد ملتی تھی، ایسا ان لوگوں نے کافی محنت کی ہوئی تھی اور ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ اس سسٹم کے حساب سے جو ہے انہوں نے اپنی خود کی زندگی بھی گزاری اور اپنے مریدوں کو بھی اچھی طرح سے اس کی تلقین کی، تعلیم دی اور ان لوگوں سے کام بھی لیا، اور ان لوگوں نے جو ہے اپنی آخرت بھی جو ہے اچھی کر لی۔ اب جو ہے نقلی پیروں کی وجہ سے یہ صوفیزم کا سسٹم جو ہے کافی بدنام ہوا۔ میں نے کافی حد تک ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے وہابیزم بھی اچھی طرح سے پڑھا، وہابیزم کے سسٹم کو بھی سمجھا، بائبل کا سسٹم سمجھا، اسلامی سسٹم سمجھا، قرآن سمجھا۔ اب جب تک اچھی طرح سے اسٹڈی نہیں کرو گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہو رہا ہے۔ اس کا ایک جب آپ جانکاری لیتے ہو نا، تب آپ کا ایک دماغ جو ہے اس طرح سے بن جاتا ہے کہ آپ پہچان جاتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اب یہاں میں بات کر رہا ہوں نقلی پیروں کے بارے میں، اور جعلی پیر جس نے جو ہے صوفیزم کو کافی حد تک نقصان پہنچایا اور زیادہ تر بدنام ہوتے رہے۔ یہ اپنے ایک انہوں نے جو نقلی پیر ہیں انہوں نے ایک اپنا طبقہ بنایا ہوا ہے، اپنے مریدوں کا ایک گروپ بنایا ہوا رہتا ہے جو اس کے آس پاس ہی اسلام، ان کو لگتا ہے کہ یہی اسلام ہے اور یہی ایک کمپاؤنڈ بن گیا ہے کہ وہ اسی پر عمل کریں گے۔ جو نقلی ہے، جو جانتا کچھ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے لوگوں میں جو شریعت کے خلاف آپ کو نظر آتی ہوگی ضرور۔ اب جو یہاں جو نقصان ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ سب سے بڑا کسی نے اٹھایا ہے تو وہ وہابی فرقوں نے اس کا فائدہ زیادہ اٹھایا۔ جو حق پر تھے، صوفیزم پر جو ہمارے ولیوں نے محنت کی، جو حق پر تھے، انہوں نے کبھی شریعت کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے برابر ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، ایسے خانقاہی سسٹم تھا جس سے جو ہے اسلام اچھی طرح سے پھیل بھی رہا تھا، لوگوں میں فیض بھی تھا اور برکتیں تھے زندگی میں۔ اب جو ہے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، نقلی باباؤں کی وجہ سے جو ہے صوفیزم بدنام ہوئی اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ اٹھایا تو وہ ہے وہابیزم۔ وہابی لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی کیونکہ ایک عالم اور بہت بڑے جو ان کے اندر جو تھے وہ کافی اپنے آپ کو صحیح، ہم جو کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، یہ بات دبا کر بولنے میں جو ہے ان لوگوں کو ان نقلی باباؤں نے جو ہے کافی حد تک مدد کی، یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے نقصان جو ہوا نا، تو نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوا؟ کیا نقلی باباؤں کا نقصان ہوا؟ نقلی بابا تو جو ہے دیکھیے وہ عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، وہ عالیشان گاڑیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن مرید خستہ کا خستہ رہ گیا، غریب کا غریب رہ گیا۔ اب اس مرید کو جو
पीर जानता नहीं है कि इस्लाम की सच्चाई क्या है, किस हद तक जो है हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लाम के लिए जो मेहनत की हुई है, इन लोगों को ये कुछ मालूम ही नहीं है और ना ही इसकी जानकारी लेने की ये कोशिश करते हैं। अब ऐसे आदमी की अगर आप मुरीद होते हो तो नुकसान जो है मुरीद का होता है। नकली जो है वो अपना बोल बाला, अपना पहरावा, अगर आप इनको देखेंगे तो ये ऐसे वेश में होते हैं कि वाह, इससे बड़ा कोई अल्लाह वाला आपको दिखेगा नहीं। तो ऐसी हालत में ये घूमते हैं, आसपास लोग जो है तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे, नारे लगाते हुए नज़र भी आएंगे आपको। मैं जो है वहाबिज़म के ख़िलाफ़ तो मैं बात करता रहता हूँ और कुरान को कुरान पढ़ने के लिए आपको प्रमोट भी करता रहता हूँ, इंस्पायर करता रहता हूँ कि आप सच्चाई की आंखों से जो है उस चीज़ की तरफ देखिए जो आपकी आखिरत बना सकती है, जो असल चीज़ है, मैं उसकी तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं वहाबिज़म का अगर कुछ गलत है तो वहाँ भी बात करता हूँ, सुन्नियत की तरफ जो कुछ गलत है तो वहाँ भी बात करता हूँ। और मुझे किसी को दुख देना ये मेरा मकसद नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे या तो इनको समझाएंगे। अब इनको समझाए कौन, क्योंकि ये अपना अपना ग्रुप लिए घूमते रहते हैं। तो नुकसान जो है ना वो उस नकली पीर का हुआ और ना वहाबिज़म बढ़ने की वजह से जो है किसका नुकसान हुआ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप गौर से इन लोगों जो वहाबिज़म पर चलते हैं उनको गौर से देखिए। ये दिखते बड़े खूबसूरत है, जिस तरह से एक नकली पीर दिखता खूबसूरत है, काफ़ी कुछ इसके पास होगा ऐसा आवाम को लगता है। और इधर वहाबिज़म का जो लीडर होता है उसकी तरफ आप देखिए तो ये लोग जो है बड़े मासूम बने घूमते रहते हैं समाज में, और इनको फॉलो करने वाले के जो है उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। अब जो है जो असल पीर होता है ना, वो पीर इनको देखता है, उसे मालूम होता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं और कुछ खामोश रहते हैं। वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। कुछ सच्चे पीर जो होते हैं उनको मालूम है कि कहाँ गड़बड़ है और उस गड़बड़ का वो इलाज भी बताते रहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कहे या हमारा नसीब कहे, हम जो है वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। इस वजह से जो है ये जहालत हमारे अंदर से जाती नहीं है और नकली लोगों को देखकर लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ज़रूर। अब देखिए, इसको ये नकली वाला जो है इसको खुद कुछ मालूम नहीं है तो ये लोगों को क्या बताएगा, क्या अपने मुरीदों को फैज़ देगा, क्या अपने मुरीदों को जो है आखिरत में इसकी क्या मदद होगी। तो अगर इस ओवरऑल अगर इसका निचोड़ करके देखेंगे तो इन नकली बाबाओं की वजह से आवाम का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और होता रहेगा जब तक कि आवाम खुद अपडेट ना हो जाए। कुरान से अपडेट अगर ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि कुरान जो है किसी फ़िरके की बात नहीं करता है, वो बात करता है आपको किसको फॉलो करना है इसके बारे में आपको इंटीमेशन ज़रूर बताएगा। रसूलुल्लाह की हदीस से आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान और मेरे अहले बैत यानी रसूलुल्लाह के जो घर के लोग हैं उनको अगर आप जाकर उनसे मुलाकात करें, उनसे के हाथ पर बैत हो जाए तो आप सही रास्ते पर हो और आपकी नजात रहेगी और आपका ईमान आप आपके साथ लेके जाएंगे, आखिरत आपकी कामयाब होगी। ये चीज़ें जो है लोगों को इससे दूर रखा गया है और आवाम ने भी अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखा। आवाम ने वो चीज़ें देखी जो अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, और इस वजह से जो है अपने आप को जो है किताबों से अल्लाह की दी हुई तालीम की, अल्लाह के रसूल ने जो दी हुई तालीम है, अल्लाह के वलियों ने जो मेहनत की, इसकी तरफ हमारा ध्यान काफ़ी हद तक कम हो गया। हमें कुछ पड़ी ही नहीं, क्यों जाएं हम इसकी तरफ, इतनी फुर्सत किसी है और क्या किसको इंटरेस्ट होगा ऐसी बातों की तरफ। इस इंटरेस्ट ना होने की वजह से और ना हमें
किसी ने बताया, हमें बस हम जिस फ़िरके में पैदा हुए हैं ऐसा लगता है कि हमारा फ़िरका सबसे आला दर्जे का फ़िरका है, यही हमें जो है आखिरत में कामयाबी देगा। लेकिन इसकी गारंटी आपको खुद नहीं होती है, सिर्फ आप इस फ़िरके में पैदा हुए उसी को फॉलो करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो है बुज़ुर्गों की किताबें पढ़िए, समझ लीजिए। किसी अच्छे आले रसूल के घर वाले अगर वहाँ कोई बैत करवाता है, मुरीद करवाता है, तो वहाँ आप जाइएगा ज़रूर। भले ही आप उनके हाथ पर हाथ देकर जो है बैत न हुए हो, उनको पीर न बनाया हो, लेकिन आप उनके सोहबत में बने रहिए। जिस दिन आपको ये लगे कि ये सही आदमी है, जिसे पीर बनाना ज़रूरी है, तब आप इस पर फैसला कर लीजिए, ताकि जो है आपको अल्लाह इस तरह से देखेगा कि इस बंदे ने जो है सही रास्ते की तरफ जाने की कोशिश की। हाँ, आप कुरान पढ़ना पहले सीख लीजिए। कुरान पढ़ने के लिए अच्छी तरह से कुरान सीख लीजिए, उसका तर्जुमा सीख लीजिए, अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कर लीजिए। ये करते करते जो है अल्लाह के रसूल की जो औलादें हैं वो दुनिया में हर तरफ है, कुछ जगह वो नज़र नहीं आती, आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे अल्लाह के रसूल की जो औलाद है वो मिलेंगी। कुछ हद तक वो जो है उनको देखेंगे आप कि वो सही तरीके से जो है इस्लाम फॉलो करते हैं और लोगों को वो तलकीन भी करते हैं। हमारी मजबूरी है, हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उन चीज़ों के अंदर बांध कर रखा हुआ है। और कहा गया है कि इन लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, ये 5 फ़र्ज़ अदा करो, आप कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हदीस में कहा ये चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, तो कैसे किसी चीज़ को कैसे पता चलेगा। तो देखिए, मैं जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आपको बताया, जितना छोटा करके बताना चाहता हूँ उतना बनाया। ज़्यादा करूँगा तो आपको रील्स की आदत है, आप भाग जाओगे। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। इतना तो अल्लाह वालों ध्यान रखो ना, ताकि जो है आपकी आखिरत अच्छी तरह से और कामयाब हो जाए। आप जब दुनिया से जाएंगे तो ये फ़ख्र लेके जाएंगे कि जो है अल्लाह ने जो हमें बात कही थी हमने उस पर अमल ज़रूर किया। इस बात का फ़ख्र के साथ में आप जाएंगे तो सुकून के साथ में आपकी कब्र की ज़िंदगी गुजरेगी, आखिरत आसान हो जाएगी आपकी। समझदारी से काम लीजिए, सिर्फ जो है ऐसे वक्त ऐसे मत गुजारिए कि आपने जो है दिन भर का जो काम कारोबार कर लिया, उसके बाद जो है जो मोबाइल लेकर बैठ गए और आपकी ज़िंदगी उसी तरह से एक साइकिल की तरफ घूम रही है। चक्का जो घूमता हुआ होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपना राय भी बताइए कि मैं आपको जो बताइए हुई ये जानकारी आपके कोई काम आ रही है या नहीं, इसके बारे में मुझे खबर ज़रूर कर दीजिएगा। मूड हो तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है आपकी सब्सक्राइब की लिस्ट में जो है कुछ ऐसे भी वीडियो आए जो आपकी आखिरत की फ़िक्र की मालूमात हो जाए। मिलते हैं साथ।